Hello students, myself Jimesh Shah from Knowledge Group Anand. In 7th standard, we are already learned Chitrapadani and lesson number 2 as well as Vandana also. Okay. Now we are continuing with the lesson number 3. The chapter name is Koruk. Now first of all, we are clear the meaning of Koruk. What is the meaning of Koruk? Koruk, that means who is healthy. Ko, that means कहा. रुक मीन्स रोगी, जो रोगी है उसकी बात कर रहे हैं. सो हु इज हेल्दी, द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कोरुक इज हु इज हेल्दी. Okay, for that purpose there is one bird and that bird is traveling here and there and the asking to people one question, koruk, who is healthy. But the sometime the people are laughing when they seeing and asking this question by the bird. Once a time he went to one on the tree and under the tree one Rishi Muni is sitting and that Rishi Muni name is Vagbhatta. Vagbhatta Rishi Muni give this answer and the same question asked to Rishi Muni. The bird is asking same question to Rishi Muni, who is healthy, and on that time that Rishi Muni is give the answer. And I think so each and every students want to become healthy, and how we become healthy, so that question also is here and that answer also is here. Now we are continuing with the chapter. एक पक्षी अस्ति, there is one bird, स आकाशात् अत्र तत्र गच्छति. सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति. He is flying each and everywhere, here and there. यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमता रहता है बर्ड. सः पुनः पुनः वदति कोरुक. He is speaking repeatedly is speaking koruk, who is healthy. Repeatedly again and again the bird is asking to people and everyone, who is healthy. Kah niroga bhavati. The question is koruk, that means kah niroga bhavati. हु इज हेल्थी, कौन सबसे ज़्यादा हेल्दी है. निरोगी कौन है, जो जिसको कोई भी रोग नहीं हो सकता है, ऐसा बंदा कौन है, ऐसा पर्सन कौन है. ऑन दैट टाइम पक्षी द्वारम अटति. द बर्ड इज गोइंग डोर टू डोर. या हर एक डोर पे जाके पूछता है ये बर्ड. एक प्रश्न पूछती. वो वहाँ पे हर एक ही प्रश्न पूछता है. जना उपहासम कुर्वन्ते. ऑन दैट टाइम व्हेन द बर्ड इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ऑन दैट टाइम द पर्सन्स आर लाफिंग. उपहासम दैट मीन्स हम किसी बात पे जो हंसते रहते हैं ना, कि इसने कोई बात की हम उड़ाते हैं किसी की, इस तरह से सारे बंदे हैं जो पीपल है, द पीपल आर लाफिंग ऑन हिम. એની સામે બધા જ પીપલ છે, બધા જ લાફિંગ કરે છે, હસે છે. કોપી ઉત્તરમ ન દદાતિ. નો વન ઇઝ ગિવિંગ ધ આન્સર. હુ ઇઝ હેલ્ધી, કોણ હેલ્ધી હોઈ શકે એનો આન્સર, ધેટ આન્સર નો વન ગિવન ધેમ. પક્ષી નિરાશા ભવતિ. ધ બર્ડ ઇઝ બીકમ સેડ. એને આન્સર નથી મળતો. ધ બર્ડ ઇઝ નોટ ગેટિંગ આન્સર, ધેટ્સ વાય ધ બર્ડ ઇઝ વેરી સેડ. After that what he is doing? Saha vanam gacchati वृक्षे उपविशति च. क्या हुआ उसके बाद? सह वनम गच्छति. द बर्ड इज गोइंग टू फॉरेस्ट. वो एक जंगल में जाता है. उपविशितम च, वृक्षे उपविशितम च, वृक्ष के ऊपर बैठता है. द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. वृक्षस्य अध, दैट मीन्स अंडर. वृक्षस्य अध वैदर्शी वाग्भट्ट अस्ति. अंडर द ट्री वन ऋषि मुनि इज सिटिंग. दैट ऋषि मुनि नेम इज वैदर्शी वाग्भट्ट. वैदर्शी दैट मीन्स वैद ऋषि, वो वैद थे. ओके, ऐसे एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम है वाग्भट्ट. पुनः पुनः वदति कोरुक.
The bird is continuously speaking. Koruk, koruk, iti vagbhatta shrunoti. That word is listening to वाग्भट. वाग्भट है ये सारी वो चीज़ है वो सुन रहे हैं. समवन इज स्पीकिंग कोरु कोरु कोरु, दैट इज हु इज हेल्दी. उनको तो पता चल गया था कि कोरु का मतलब क्या है. सहवदती, द ऋषि मुनि से द 3 main words are there. Just listen carefully students, because these 3 words, if in your life, then your life becomes so much healthy. Okay? Hitabuka, Mitabuka, Rutubuka. Iti. I think so these 3 words, આ ત્રણ વર્ડ સાંભળીને તમને એવું થશે કે આ પાછું કયું નવું આવ્યું. ઓકે ઓકે, જસ્ટ I will explain these 3 words. Hitabuka. Hitabuka, that means हमें कैसा खाना चाहिए, हम हेल्दी किस तरह से रह सकते हैं, हम किस तरह से खाना खाते हैं ना, उस तरह से हम हेल्दी रहते हैं. हितबुका, हितकारी जो भोजन है वो ही लेना चाहिए, हमारे शरीर को अनुकूल हो वो ही हमें खाना चाहिए. some people have some allergy. ओके, अगर कोई खट्टा खा लेता है, इमली खा लेता है, खट्टा खा लेता है, तो उसको एलर्जी होती है, पेन शुरू हो जाता है, तो वो इमली नहीं खा सकता है. दे कांट ईट द इमलीज. ओके, बट अनदर पर्सन इज लाइक द इमली. दूसरा बंदा है वो इमली आराम से खाता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं होता है, वो आराम से खाता है. तो जो बंदा इमली नहीं खा रहा है, जिसको पेन होता है, उसके लिए वो हितकारी है नहीं है. That's why we have to eat each and everything according to our body, which things are very easy to our body. हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा इजी है, हमें जिसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है, ऐसी हमारी चीज़ जो होती है वो हमें खानी है. ठीक है. नेक्स्ट वन, मितबुका, मितकारी भोजन खाना चाहिए. मितकारी, दैट मीन्स in proper meal, in proper quantity. हमें भूख है कि 5 रोटी हम खा सकते हैं आराम से, तो 3 अगर खाते हैं तो भी हम भूखे रहेंगे और हमें डिसीज होते रहेंगे. 5 की भूख है तो 4 खाओ, लेकिन 3 बहुत कम खाने से भी हमें डिसीज हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा खाने को भी हो जाते हैं. ओके, इफ़ वी आर गोइंग इन समवन सेरेमनी, किसी के मैरिज में अगर हम जाते हैं, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्वीट हमें पसंद है. फॉर एग्जांपल, वी लाइक द काजू कतरीज. ओके, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर लाइक द काजू कतरीज. एंड इन मैरिज जो वहाँ पे खाना वगैरह होता है, उसके अंदर काजू कतरी है, तो क्या करेंगे हम? टूट पड़ेंगे उस पर? बिल्कुल नहीं. अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है उतना ही हमें खाना है. ज़्यादा खाने से डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम होगा और उसकी वजह से हमें डिसीज शुरू हो जाएंगे. ओके, दैट्स व्हाई मितबुका, दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ मील इन प्रॉपर क्वांटिटी. ओके, एंड द थर्ड वन इज ऋतुबुका. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋतुबुका? Rutubuka, that means we have to take a meal according to season. According to season. If the mango season, summer season is going on that time we have to eat mangoes, it's okay. But in winter season, if we take the mangoes, that one is very bad. It is not good for our health. Okay. So each and everything according to season. हमें जो भी खाना है सीजन के हिसाब से खाना चाहिए. ठीक है. दिस प्रॉपर थिंग्स इज हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थ अस्ति. यह हितकारी भोजनम करोति, यह मितम भोजनम करोति. अर्थ क्या है, हमें कैसा खाना करना चाहिए? हितकारी भोजन, हमारे शरीर के लिए जो अनुकूल है ऐसा खाना चाहिए. मित भोजनम करोति, मितम भोजनम करो, दैट मीन्स
we have to take a meal in proper quantity, and the third one is यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, we have to take a meal according to season. सीजन नहीं है, ऐसी चीज हमें खाने से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर डिसीज पैदा होने लगेंगे. ठीक है. नाउ सह एव निरोग भवति. The Rishi Muni give answer this, and after that the Rishi Muni said saha eva niroga bhavati, that person is become healthy. Santushta pakshi rishi samipam agacchati. The santushta pakshi, the satisfied bird is coming near to the Rishi Muni. Rishi Muni जहाँ पे है वहाँ पे वो बर्ड आता है, और जो बर्ड आता है वो हम पिक्चर में आराम से देख सकते हैं. ऋषि मुनि के सामने ये बर्ड है. ठीक है. सह ऋषि मुनि नमति, सह ऋषि नमति. द बर्ड इज गोइंग डाउन टू ऋषि मुनि. जो वाग्भट्ट जी ऋषि मुनि है उनको वो प्रणाम करता है, नमन करता है. अनंतरम स्वस्थानम गच्छति. आफ्टर दैट इज फ्लाइंग ऑन ओन प्लेस. उसकी जो जगह है वहाँ पे वो फ्लाइंग करके अपनी जगह पे उड़ जाता है, वापस चला जाता है. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द बर्ड इज स्पीकिंग हु इज हेल्दी, एंड ऋषि मुनि गिव द आंसर हितबुका, मितबुका, ऋतुबुका. वी हैव टू टेक अ मील इन प्रॉपर क्वांटिटी. Okay, one that takes balanced meal. Mitabuka wants to take meal in proper quantity, and the third one wants to take some meal according to season. These three things are very important in our life, very important in our life. If we follow this kind of meal, then we all are become healthy. Okay students, this lesson is over here. Now we are continuing with the exercise in next session. Thank you students.